بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو 10th کلاس کے بیالوجی کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 1 کو ڈسکس کریں گے، ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم۔ فرسٹ ٹاپک نیوٹریشن، نیوٹریشن کی ٹائپس کو ڈسکس کیا جائے گا اور نیوٹریشن کی امپورٹنس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا، تمام کمپوننٹس اورل کیویٹی سے لے کر لارج انٹسٹائن تک۔ اور ٹاپک نمبر 3 میں ڈس آرڈرز آف ڈائجسٹیو سسٹم کو ڈسکس کیا جائے گا، جس میں ڈائریا، کانسٹیپیشن اور السر کی تفصیل بتائی جائے گی۔ ہمارا جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ ہے ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم، انسان کا نظام۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ کی بک والا جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا جسم جتنے بھی کام کرتا ہے، ہم گرو کرتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں، ہم ہیلدی ہوتے ہیں، ہم موومنٹ کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم کھاتے پینے کے لیے حرکت کرتے ہیں، یہ تمام کا تمام غذائی اجزاء پر انحصار کرتا ہے، نیوٹرینٹس پہ انحصار ہے ان کا۔ اور ان غذائی اجزاء کو حاصل کرنے کے لیے ہم خوراک کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتے ہیں، چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے کے بعد وہ پروسیس آف ڈائجیشن کی طرف جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ہمارے جسم کے خلیوں میں حل ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارے ٹیشوز اس سے پاور حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کا پروسیس ہے بیسیکلی۔ اب اس میں نیوٹریشن اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ نیوٹریشن ہے کیا؟ نیوٹریشن ہے غذائی اجزاء کو حاصل کرنا۔ کیسے ایک جاندار غذائی اجزاء کو حاصل کرتا ہے، کیسے اس غذائی اجزاء کو حاصل کرنے کے بعد استعمال کرتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء اسے نشو نما پانے میں، اس کو صحت مند رہنے میں، اس کی باڈی کے ریپیئرمنٹ میں، اس کی باڈی کی ورکنگ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تمام جانور انکلوڈنگ انسان اپنی خوراک خود نہیں بناتے، یہ ہیٹروٹروفک نیوٹریشن موڈ کہلاتا ہے۔ دو قسم کے آپ کے غذا حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، آٹوٹروفک اور دوسرا ہیٹروٹروفک۔ جو آٹوٹروفک موڈ آف نیوٹریشن ہے، اس میں جاندار اپنی خوراک خود بناتے ہیں، جیسے کہ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں فوٹوسنتھسس کے ذریعے۔ اس کے برعکس جو ہیٹروٹروفک موڈ آف نیوٹریشن ہے، اس میں جاندار اپنی خوراک خود نہیں بناتے ہیں، جس میں انسان آ جاتا ہے، جانور آ جاتے ہیں ہر قسم کے۔ تو یہ دو بیسک بنیادی طریقہ کار ہیں خوراک حاصل کرنے کے۔ پھر اس میں آپ کے پاس جانوروں میں نیوٹریشن جو ہے ڈفرنٹ مراحل سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے اسے انجیکشن کہتے ہیں۔ انجیکشن کا مطلب کہ آپ نے کھانے کا نوالا منہ کے ذریعے اپنے حلق میں ڈالا، اس کو انجیکشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ ڈائجیشن، آپ نے اس نوالے کو چبانا شروع کیا، اس کی گرائنڈنگ کا پروسیس شروع کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسے تقسیم کیا تاکہ آپ کے جسم میں وہ خون اور آپ کے سیلز میں ایبزارب ہو سکے، اسے ڈائجیشن کہتے ہیں۔ اب جب ایبزارپشن کے سٹیپ پہ آتے ہیں تو یہی جو غذائی اجزاء جو ہضم شدہ خوراک ہے اس میں سے آپ کے خون میں اور لمف میں شامل ہو جاتے ہیں، جسے ایبزارپشن کا عمل کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو پاور ملتی ہے۔ اس کے برعکس ایک سٹیپ اسیمیلیشن ہے کہ یہ جو جذب شدہ غذائی اجزاء ہیں جو آپ کے خون میں شامل ہو گئے ہیں، ان کو ڈفرینٹ سیلز اور ٹیشوز تک پہنچانا، ڈفرینٹ سیلز اور ٹیشوز تک ایبزارب کرنا، تاکہ ہمارے باڈی کے سیلز اور ٹیشوز جو ہے ان سے پاور حاصل کر سکیں اور اپنے ریکوائرڈ فنکشنز کو پرفارم کر سکیں۔ اس کو ایسیمیلیشن کہتے ہیں۔ اور لاسٹ سٹیپ اس میں ایجیکشن کا ہوتا ہے۔ ایجیکشن کا مطلب ہے کہ جو خوراک جذب ہو گئی وہ تو آپ کی باڈی کا حصہ بن گئی، اور جو خوراک جذب نہ ہو سکی، انڈائجسٹڈ فوڈ، وہ آپ کی باڈی میں کچرا یا فضلہ بن گئی ہے۔ اس فضلے کو آپ کی باڈی سے نکالنا، اس انڈائجسٹڈ فوڈ کو ریموو کرنا، اس ویسٹ کو اپنی باڈی سے ایلیمینیٹ کرنے کے عمل کو ایجیکشن کہتے ہیں۔ تو یہ 5 سٹیپس ہیں بیسیکلی جو نیوٹریشن کے ساتھ، نیوٹرینٹس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ایجیکشن، نمبر 2 ڈائجیشن، نمبر 3 ایبزارپشن، نمبر 4 ایسیمیلیشن اور نمبر 5 ایجیکشن۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں یہ پولیمرز سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ پولیمرز کیا ہیں؟ آپ کے بائیو مالیکیولز، آپ کے ایسے بڑے مالیکیولز جن سے مل کر آپ کی باڈی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز،
फैट्स, लिपिड्स। अब ये सेल मेम्ब्रेन्स को डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, ये जो पॉलीमर्स हैं इनको तोड़ना पड़ता है, इनके ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस होता है, छोटे टुकड़ों में इन्हें तोड़ा जाता है, सोल्यूबल पार्ट्स में तोड़ा जाता है, और उन हलशुदा पार्ट्स को, सोल्यूबल पार्ट्स को मोनोमर्स कहा जाता है, जिनमें शुगर्स भी आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं, फैटी एसिड्स भी आ जाते हैं, और जब ये टूटकर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे तो ये डाइजेशन का अमल कहलाता है। ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं अब ये खुलियों में शामिल हो सकते हैं, ये आपके सेल्स और टिश्यूज का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम डिटेल से बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, इंसान का निज़ाम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लंबी ट्यूब इन्वॉल्व है और कुछ उसके ऐसे कंपोनेंट्स, कुछ उसके ऐसे ऑर्गन्स जो उसको मददगार साबित होते हैं। इस लंबी ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे मकद पे खत्म होती है जाके एनस पे। एनस कहते हैं मकद को। सेलिवरी ग्लैंड्स, आपका जिगर, लीवर, आपका पैंक्रियास, आपका लबलबा, ये कुछ रतूबतें पैदा करता है और इस एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ता है, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन का अमल आसान होता चला जाता है। अब सबसे पहला हिस्सा इस एलिमेंट्री कैनाल का ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी मुराद आपके मुंह के अंदर की खला, जो आपके माउथ के अंदर स्पेस है उसे ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। यहां अल्लाह ताला ने हमारी जुबान पर टेस्ट बड्स रखे हैं, जिससे हम खुराक को चखते हैं। जब आप खाना खाते हैं, कोई निवाला खाते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये ताज़ा है या बासी है, ये टेस्ट बड्स आपको बताते हैं। उसके बाद जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं निवाले को, अगर वो आपको जायके में पसंद आ जाता है, तो मैकेनिकल डाइजेशन का अमल शुरू होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में आप उसको चबाते हैं, च्यूइंग का अमल होता है। आपके जो टीथ हैं, आपके जो दांत हैं, आप उससे उसको कट डाउन करते हैं, आप उसे ग्राइंड करते हैं छोटे पीसेस के अंदर। इस ग्राइंडिंग के दौरान आपकी जो जुबान है वो फायदा दे रही होती है। कैसे कि वो आपकी खुराक को रोल आउट करते हुए जो खुराक नहीं चबाई गई होती उस निवाले के हिस्से को उन दांतों के नीचे लेके जाती है जहां आपने ग्राइंडिंग करनी है। फिर इसी ओरल कैविटी में, इसी मुंह के एरिया में आपकी पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी शुरू हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। वो कैसे कि अल्लाह ताला ने यहाँ सेलिवरी ग्लैंड्स रखे हैं। इन सेलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी के साथ जुड़े हुए हैं और ये रतूबत पैदा करते हैं सैलिवा नामी। सैलिवा जो है उसमें पानी भी पाया जाता है, उसमें म्यूकस भी पाया जाता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसे सेलिवरी एमिलेज कहते हैं। ये सेलिवरी एमिलेज आपके खुराक के निवाले को बिल्कुल नम आलूद कर देता है, गीला कर देता है, मॉइस्चन कर देता है। उस गीले निवाले की वजह से उसको चबाना और भी आसान होता चला जाता है। सेलिवरी एमिलेज स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और इनको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। माल्टोज डाइसेक्राइड है जिसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह स्टार्च टूटना शुरू होता है किसमें? माल्टोज में। अब स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड था उसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, तो वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वाले डाइसेक्राइड में टूटना शुरू हो गया। इससे अगला अमल जो है वो स्वेलोइंग का है। स्वेलोइंग कहते हैं निवाले को निगलने को। जब आप पार्शियल फिजिकल और केमिकल डाइजेशन कर चुके होते हैं अपने मुंह के एरिया में, तो ये जो फूड मैस आपका बनता है एक चिकना निवाला, उसे बोलस कहते हैं और वो एक गोली नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस बोलस को आपने अपने हलक में पुश डाउन करना होता है। इस पुश डाउन करने के अमल को स्वेलोइंग कहते हैं। आप इस बोलस को अपने फेरिंक्स में पीछे धक्का देते हैं। स्वेलो करने के लिए आपकी जो जुबान है वो आपकी मदद करती है। जुबान इस बोलस को बैक ऑफ द ओरल कैविटी धक्का लगाती है। जो निवाला आपने निगल लिया है वो आपके हलक में शामिल हो जाता है, फेरिंक्स में पहुंच जाता है। इस निगलने के अमल में जो आपके पैलेट है, जिसे आप ओरल कैविटी की रूफ कह सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर की साइड पर शिफ्ट हो जाता है
ताकि आपकी नाक की नाली बंद हो जाए और ये वाला निवाला आपकी सांस लेने के अमल में डिस्टर्बेंस ना पैदा करे। और जो बच्चे खाना खाते हुए बोलते हैं उससे उनकी सांस की नाली में एक्टिविटी जाती है, जिसकी वजह से माएँ कह रही होती हैं अथू लग गया है जी, सांस फंस गया है, तो इसलिए खाना खाते वक्त बोलने से मना किया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फेरिंक्स और ओइसोफेगस को। फेरिंक्स जो है वो एक छोटी ट्यूब है हमारी ओरल कैविटी के पिछली साइड पर, जिसे हम हलक भी कहते हैं। ये ओरल कैविटी को ओइसोफेगस से मिलाती है। इसके अलावा इसका दूसरा पर्पस ये हमारी नाक को हमारे विंड पाइप या ट्रैकिया से भी मिलाती है। जो केमिकल डाइजेशन का आपका प्रोसेस है वो ओरल कैविटी से शुरू हो चुका होता है और वो कंटिन्यू करते हुए फेरिंक्स में आ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फेरिंक्स का है वो ये है कि आपके फेफड़ों में, आपकी सांस की नालियों में आपकी खुराक के पार्टिकल्स को जाने से रोकना फेरिंक्स का काम है। अब ये कैसे करता है? यहां पर अल्लाह ताला ने एक इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप रखा हुआ है। वो जो फ्लैप ऑफ टिश्यू यहां रखा हुआ है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस हमारे ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन की तरह चिपक जाता है और ग्लॉटिस को, जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग है जिसमें हमारी सांस की नाली है, उसको बंद कर देता है। किस वक्त बंद करता है? जब हम अपनी निगली हुई खुराक के निवाले को पास ऑन कर रहे होते हैं अपनी फेरिंक्स से ओइसोफेगस की तरफ। जब आप निगले हुए निवाले को हलक से गुजारते हैं तो आपका जो विंड पाइप है, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, ये एपिग्लॉटिस के अपोजिट साइड पे पुशअप हो जाता है ताकि ग्लॉटिस को बंद किया जा सके। अगर ये ग्लॉटिस बंद ना होगा तो आपकी सांस की नाली की तरफ वो खुराक का निवाला या उसके पार्टिकल्स जा सकते हैं। सेकेंड ट्यूब जो है ओइसोफेगस, जहां आपने फेरिंक्स से निवाले को शिफ्ट किया है, ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। ये फेरिंक्स को आपके मैदे से मिलाती है। जब खुराक ओइसोफेगस में शामिल होती है, आती है, तो आपका मैदा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। आपने देखा होगा अक्सर बैठे हुए, लेटे हुए आपका जो पेट है वो ऊपर उठ रहा है, वापस आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, वापस आ रहा है। तो आप देखें कि ये बेसिकली ओइसोफेगस के या मस्कुलर वॉल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सुकड़ना और रिलैक्सेशन मतलब फैलना। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मस्कुलर अमल को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से आपकी खुराक इस नाली में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की रतूबतों के साथ मिक्स होती है, जो डाइजेशन में मददगार होती है। थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टमक। स्टमक जो है वो जे शेप्ड मस्कुलर एक स्ट्रक्चर है। आपकी अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, डायाफ्राम से नीचे और एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर पाया जाता है। अब स्टमक के दो एंड हैं, स्टार्टिंग एंड और एंडिंग। जो स्टार्टिंग एंड है इसका, जो कि ओइसोफेगस के बिल्कुल बाद आता है, इसको कार्डिक एंड कहते हैं। जबकि छोटी आंत से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो इसका पार्ट है, उसको पाइलोरिक एंड कहते हैं। अब जिस जगह पर ओइसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है, जोड़ है, जहां ये मिलते हैं, वहां पर रिंग ऑफ मसल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्फिंक्टर कहा जाता है। और चूंकि ये ओइसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे है तो इन्हें कार्डिक स्फिंक्टर कहा जाता है। लोअर ओइसोफेगल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि आपकी खुराक को वापस ओइसोफेगस की तरफ, वापस आपकी हलक की नाली की तरफ ना जाने दें। इसी तरह इसका जो दूसरा एंड है, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ये आपके मैदे और छोटी आंत के दरमियान पाया जाता है। आपका मैदा मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के कुछ हिस्से का रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर भी कुछ ऐसी रतूबतें हैं जिसकी वजह से आपके मैदे में पहुंचने वाली खुराक का मजीद ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल जो डाइजेशन है उसके अंदर आपको बताया कि पेरिस्टाल्सिस का अमल चल रहा होता है। आपका मैदा अप एंड डाउन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस करता है। मैदे का एक पर्पस खुराक को स्टोर करना है। हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं वो थिक और स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है। जब खुराक यहां पर पहुंचती है तो ये मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्शंस है, इसके वजह से ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है
खुराक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, चर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है। इस हीट की वजह से आपके लिपिड्स मॉलिक्यूल मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रतूबतें पैदा करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें HCl है, जिनमें पेप्सिनोजन है, फिर इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है आपका HCl। ये जो HCl और पेप्सिनोजन यहाँ मौजूद हैं, ये बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। और जब आपके लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स छोटी चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में टूटते हैं तो इन्हें पेप्टाइड्स कहा जाता है। इन टॉपिक्स में आप ये देख लें कि हर दूसरी लाइन में आपको छोटे छोटे एक एक लाइन के शॉर्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो लिहाजा आप यहीं से इनको मार्क करते चले जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। HCl का एक और काम क्या है कि अगर कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो खुराक में मौजूद था और आपके मैदे तक पहुंच गया है खुराक के साथ, तो ये उसको भी किल डाउन कर देता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन बैक्टीरिया को मारना इस HCl का काम है। इसके अलावा जो म्यूकस है वो आपके स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, ताकि जो HCl यहां पर मौजूद है, तेजाबियत जो है वो आपके मैदे के वॉल्स को किल डाउन ना कर दे, रप्चर ना कर दे, वहां तेजाबियत ना फैला दे। तो पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट नहीं किया जा सकता और जो वॉल्स ऑफ द आपके मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन से प्रोटेक्ट रहते हैं। इस तरह आपकी जो खुराक है वो आपके मैदे में तकरीबन 3 से 4 घंटे रिजाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो डाइजेशन का अमल है वो कितना तेज है। एक बच्चा है वो खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा वॉक करता है, तो यकीनी बात है उसके स्टमक ने स्टोरेज तो जरूर की, लेकिन चर्निंग का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो गया, तो उसकी डाइजेशन जल्दी हो जाएगी और ये टाइम कम हो जाएगा। और इसके बरक्स एक ऐसा शख्स है जो खाना खाने के बाद लेट जाता है और फौरन से कोई वॉक एक्टिविटी नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या पेरिस्टाल्सिस का अमल उसका स्लो होता है, तो वहां पर जो खाना स्टोरेज का टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। अब आपके स्टमक ने ये जो रतूबतों के साथ मिक्सिंग करने के बाद प्रोटीन्स को तोड़ा और खाने को मजीद हल्का किया, इससे एक सूप लाइक मिक्सचर बन गया जिसे चाइम कहते हैं। ये जो सूप लाइक मिक्सचर चाइम है ये नेक्स्ट हिस्से में फ्लो डाउन करेगा, तो आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये चाइम के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब जब आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है 5 से 15 ml चाइम जो है वो छोटी आंत में शिफ्ट हो जाता है। अब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका। छोटी आंत जो है वो कॉइल ट्यूब है, गोल गोल घूमी हुई होती है, 7 मीटर तकरीबन इसकी लंबाई है और ये आपके मैदे के फौरन बाद होती है। इसके 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम इसका पहला हिस्सा है जो तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा है, फिर जेजुनम इसका मिडल पार्ट है जो तकरीबन 2.5 मीटर लंबा है, और इलियम इसका लास्ट पार्ट है जो तकरीबन 4 मीटर या कह लें कि 13 फीट लंबा है। हमें इनके मकसद पढ़ने हैं कि इन तीनों हिस्सों में जो जूसेस हैं, जो रतूबतें हैं, वो कैसे खाने के साथ इंटर होती हैं और मजीद इसको कैसे ब्रेक डाउन के अमल से गुजारती हैं। अब ड्यूडेनम जो पहला हिस्सा है इसमें आपका जिगर और आपका लबलबा रतूबतें छोड़ता है खुराक के ऊपर। जो आपके जिगर की रतूबत है जिसे बाइल कहते हैं, ये ड्यूडेनम में इंटर होता है बाइल डक्ट के जरिए। इसके अंदर कुछ ऐसे साल्ट्स मौजूद हैं जो फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। जो आपने लिपिड्स या फैट्स आपकी खुराक में शामिल हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाता है। इस तरह एक दूधिया सा फ्लूइड बन जाता है, मिल्की फ्लूइड, जिसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स अलहदा अलहदा नजर आ रहे होते हैं। इसको इमल्सिफिकेशन का अमल कहते हैं। ये जो पैंक्रियाज की सिक्रीशंस हैं इनको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये रतूबतें बहुत कारामद रतूबतें हैं कि ड्यूडेनम में शामिल होती है पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए और इसके साथ साथ बाइल डक्ट के अंदर मिल जाती है, ज्वाइन कर जाती है, ड्यूडेनम में शामिल होने से पहले ही उस रतूबत के साथ मिल जाती है। इसके अलावा आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं।
اب یہ امپورٹنٹ 4 لائنز ہیں, اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے. انزائمز کے نام کیا ہے؟ ٹرپسن, پینکریاٹک ایمیلیز اور لپیز. اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرواتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کرواتے ہیں, لپڈس کو. پروٹین کو ٹرپسن ڈائجسٹ کرواتا ہے, کاربوہائیڈریٹس کو پینکریاٹک ایمیلیز ڈائجسٹ کرواتا ہے, اور لپڈس کو جو ہے لپیز نامی انزائم ڈائجسٹ کرواتا ہے. پینکریاٹک جوس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی پایا جاتا ہے, جس سے آپ کے چائم کی جو ایسیڈیٹی ہے اس کو کم کیا جاتا ہے, اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے. جو غدود ہماری چھوٹی آنت میں موجود ہیں یہ رطوبتیں پیدا کرتے ہیں تاکہ تمام قسم کی خوراک, چاہے وہ پروٹینز ہیں, چاہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں, چاہے وہ لپڈس ہیں, ان کی کمپلیٹ ڈائجیشن ہو سکے. تو یہ ایک بگ پکچر آپ کی بک میں دکھائی گئی ہے. سیلیوری گلینڈز اورل کیوٹی سے سٹارٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد فیرنکس کا حصہ, پھر ایپیگلوٹس کا آپ کو مقصد سمجھایا کہ وہ گلوٹس کو کیسے فلیپ آف ٹیشو بند کرتا ہے تاکہ سانس کی نالی کی طرف نہ جائے, پھر آپ کی اوئسوفیگس کی ٹیوب, اس کے بعد آپ کا سٹمک جس میں چرننگ پروسیس بھی ہونا ہے, اور پیرسٹیلسس کے پروسیس کا آپ کو ڈسکس کیا گیا. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے چھوٹی آنت جس کے اندر پینکریاٹک جوس, بائل ڈکٹ جو ہے وہ خوراک کو توڑتے ہیں. اب نیکسٹ حصے میں ایبزارپشن آف فوڈ کا عمل. جب آپ کی فوڈ کمپلیٹلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے تو جو اینڈ پروڈکٹس آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ امائنو ایسڈز, شوگرز ہیں, گلائسرول ہیں, فیٹی ایسڈز ہیں. یہ ایلیمنٹری کینال سے آپ کے سرکولیٹری سسٹم کی طرف شفٹ ہوتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کو اس سے انرجی پرووائڈ کی جا سکے. آپ کے اسمال انٹسٹائن کی جو والز تھی وہ فولڈڈ تھی, آپ کو بتایا کہ وہ رنگ شیپ تھی, کوائلڈ تھی. ان فولڈز کے اندر چھوٹی چھوٹی فنگر لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ابھار ہوتی ہیں انگلی نما جو ہے, ان کو ولی کہتے ہیں. ایک ولس اور پلورل میں یہ ولی کہلاتی ہیں. یہ فولڈز اور ولی جو ہے یہ ایبزارپشن آف فوڈ کے لیے ایک میدان مہیا کرتی ہیں, ایک سرفیس ایریا مہیا کرتی ہیں. جو فوڈ مالیکیولز ایبزارب ہوتے ہیں اس سرفیس کے تھرو, ان میں ڈیفیوژن اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. ولس کی جو والز ہیں وہ سنگل لیئر آف سیلز پر مشتمل ہوتی ہیں, اور ان کی اندرونی سطح پر خون کی کیپلریز موجود ہیں, بلڈ کیپلریز موجود ہیں, لمفیٹک نوڈز, لمف ویسل موجود ہیں جنہیں لیکٹیل کہتے ہیں. گلائسرول اور فیٹی ایسڈز جو کہ چھوٹی آنت میں موجود ہیں یہ لیکٹیلز آف ولی میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو لیکٹیلز ہیں یہ ان کو لے کر مین لمفیٹک ویسلز کی طرف لے جاتے ہیں, جو کہ دل کے قریب بلڈ ویسلز ہیں وہ اس وقت خالی ہوتی ہیں. اب یہ خالی کروانے کے بعد جو آپ کے امائنو ایسڈ اور سمپل شوگرز ہیں یہ بلڈ کیپلریز میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیپلریز ہیپیٹک پورٹل وین کے ساتھ جا کر جڑ جاتی ہے جو کہ تمام امائنو ایسڈز اور شوگرز کو جگر کی طرف لے جاتی ہے. آپ کا جو جگر ہے یہ ہیپیٹک وین کو ان نیوٹرینٹس کو کیری کرنے دیتا ہے اپنے دل کی طرف, اور پھر دل سے یہ پمپ آؤٹ ہوتی ہیں باڈی کے ہر حصے کی طرف, اور تمام کے تمام آپ کے باڈی کے حصوں تک یہ جو غذائی اجزاء ہیں ان کی طاقت پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ نوٹ اپینڈکس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اسمال فنگر لائک اپینڈکس موجود ہے آپ کے سیکم میں. اب یہ جو اپینڈکس لائک فنگر ہے اس کا کام کیا ہے؟ اگر اپینڈکس میں انفیکشن ہو جائے تو آپ کو سیویئر پین ہوتا ہے, اور انفیکٹڈ اپینڈکس جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے سرجری کے, اس کو ریموو کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو ٹائم پہ ریموو نہ کروائیں تو یہ برسٹ آؤٹ ہو جائے گا, انفیکشن آپ کے ایبڈومن میں پھیل جائے گی اور زہر پھیل جائے گا سمجھیں آپ کے جسم میں. اب اپینڈکس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سنت طریقہ اپنائیں کھانا کھانے کا. ایک ٹانگ کو کھڑے کر کے بیٹھیں لیفٹ سائڈ والی کو, اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو اپینڈکس والا حصہ ہے یہ دبا رہتا ہے اور خوراک جو ہے کسی صورت اپینڈکس والے حصے کی طرف نہیں جاتی, اس سے آپ کے اپینڈکس میں انفیکشن نہیں ہوتا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے لارج انٹسٹائن, بڑی آنت جسے ہم کہتے ہیں. اب جو لارج انٹسٹائن ہے جب آپ کا فوڈ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور پانی اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو
तो ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाकी बच गया, और वो पानी जो बाकी बच गया पेरिस्टालसिस के अमल के थ्रू, वो कहां लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अपने 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा सैकम, वो थैली जो कि छोटी आंत के साथ जुड़ी हुई है, जंक्शन बनाती है, वहां जुड़ी हुई है। दूसरा हिस्सा कॉलन, और तीसरा हिस्सा रेक्टम कहलाता है। अब जब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद वो फीसिस कहलाता है, जिसे आप आम जुबान में पोटी कहते हैं। ये जो फीसिस है इसमें तमाम अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं, इसमें बैक्टीरिया हैं, इसमें एलिमेंट्री कैनाल के ब्रोकन सेल्स हैं, इसमें बाइल पिगमेंट्स हैं, इसमें वाटर शामिल है। ये फीसिस टेम्परेरीली तीसरे हिस्से रेक्टम में स्टोर होता है कुछ देर के लिए, और जब इतना प्रेशर मेंटेन हो जाता है कि वो थैली फिल होना शुरू होती है, तो आप इजेक्शन के अमल से गुजरते हैं। आप इस फीसिस को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं मकद के जरिए, उस मकद को एनस कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था आपकी खुराक के निवाले को मुंह में डालने से लेकर एंड इजेक्शन के प्रोसेस तक, जो आपने एलिमिनेट किया अपनी बॉडी से। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लिवर, कि जिगर का क्या किरदार है हमारी बॉडी में। लिवर जो है वो एक बड़े साइज का ऑर्गन है जो कि हमारे मैदे के राइट साइड पर रिजाइड करता है। एक जवान इंसान में इसका वजन तकरीबन 1.5 किलो होता है। तो ये एक अंदाजा होता है, इसको फिक्स ना कर लीजिएगा। ये एक सैक लाइक ऑर्गन है, पाउच लाइक ऑर्गन है, जैसे कि आपका गैल ब्लैडर भी होता है। तो ये वेंट्रल साइड ऑफ द लिवर पर मौजूद होता है। तो ये जो गैल ब्लैडर है ये थैलीनुमा होता है और जिगर के साथ जुड़ा होता है, जिसे आप उर्फे आम में पित्ता भी कहते हैं। ठीक है। अब आपका जिगर जो रतूबत पैदा करता है उसे बाइल कहते हैं, और बाइल को स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, पित्ते में। ठीक है। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये बाइल को गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम तक लेकर आती है। बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन इसमें कुछ ऐसे साल्ट्स मौजूद हैं जो फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तकसीम करते हैं। इसका पहले भी हमने जिक्र किया ऊपर वाले टॉपिक में। बाइल साल्ट्स जो है फैट ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं, तो चाइम में ये बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे होते हैं। ये मदद करते हैं एंजाइम्स की, ताकि वो अटैक करें लिपिड्स के ऊपर और लिपिड्स की डाइजेशन का अमल आसान हो सके। लीवर के और भी हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इट स्टोर ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन, कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है और ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है जब जरूरत पड़ती है जिस्म को एनर्जी की, जब जरूरत पड़ती है हमें चलने फिरने दौड़ने भागने की, उस वक्त ये फैट सोल्यूबल विटामिन को अपने पास जखीरा करता है। ये अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है जिसमें हार्मफुल अमोनिया प्रोड्यूस होती है। इस अमोनिया को ये लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि हम यूरिन के जरिए अपने जिगर से अपने बॉडी से पास आउट कर देते हैं। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करता है। वो रेड ब्लड सेल्स जो अपनी मुद्दत खून के अंदर पूरी कर चुके होते हैं, अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुके होते हैं और अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, ये उनको जो है ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे आप आम जुबान में सुनते हैं कि जी जिगर खून साफ करता है, दैट इज द लाइन जो बता रही है आपको कि जिगर खून कैसे साफ करता है। फिर इट प्रिपेयर्स विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन, एक ये विटामिन ए की तैयारी में भी मदद करता है। कोल्ड टेम्परेचर जब होता है, ठंडा होता है बाहर मौसम, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने की कोशिश करता है, जिससे आपको एनर्जी भी मिलती है और आपको सुकून भी हासिल होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके निजाम की बीमारियां, क्या ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हैं जो आपको
کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جس کا کنیکشن آپ کے ڈائجسٹو سسٹم سے. تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے ڈائریا. ڈائریا جو ہے اس کی خصوصیات میں واٹری سٹولز ہیں, فریکوینٹ سٹولز ہیں, لوز واٹری سٹولز ہیں, کہ ایسا پخانہ آنا, پانی نما پخانہ آنا, موشن لگ جانا. ڈائریا جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتا ہے. آپ کے جسم کا پانی بہت تیزی سے آپ کے جسم سے باہر آؤٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. یہ بچوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بزرگ لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی جو علامات ہیں اس میں سب سے پہلے ایبڈومینل کریمپس ہے, کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو گیس فیلنگ آتی ہے, اور ڈی ہائیڈریشن, آپ کا سارا منہ خشک ہو جاتا ہے, آپ کو پیاس لگتی ہے, اور یورین جو ہے آپ کا سمیلی ہو جاتا ہے, ڈارک پیل یلو کلر کا یورین ہو جاتا ہے. یہ اس کی جو ہے سمپٹمز ہیں. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ بیکٹیریل انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے, یہ وائرل انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ پیراسائٹس کی انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی خوراک سے آپ کو الرجی ہو, اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسی گرم خوراک جو کہ آپ کا معدہ ہضم نہ کرتا ہو آسانی سے, اس سے یہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی وجہ سٹریس ہے. جب کبھی آپ کسی پروجیکٹ کی, کسی گھر کی ٹینشن کی, کسی پڑھائی کی ٹینشن کی بہت زیادہ سٹریس لے لیتے ہیں, وہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے. اور کچھ میڈیسنز, اینٹی بایوٹکس میں ایسی گرم میڈیسنز ہوتی ہیں جس کو لینے کے بعد اکثر لوگوں کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے. اب اس کے علاج کے طور پر کیا کرنا چاہیے اور اس سے بچنا کیسے ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک, اگر یہ آپ کو ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ فلوئڈز کا استعمال کریں, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, نیمکول کا استعمال کریں جسے آپ ORS کہتے ہیں, نرم غذا کھائیں تاکہ آپ کے معدے کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے, اینٹی ڈائریا میڈیکیشنز لیں اپنے ڈاکٹر سے, اینٹی بایوٹکس لیں, اور اگر اس سے بھی سیویئر کیس ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے لارج ٹریٹمنٹ لیں اور کوئی ڈرپ وغیرہ لگوائیں. احتیاطی تدابیر کے طور پر ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوئیں, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, باتھ روم جانے کے بعد ہمیشہ ہاتھ دھوئیں صابن کے ساتھ, اور گندے آلودہ پانی سے بچنے کی کوشش کریں, سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں. جب کبھی کوئی ہائی اینٹی بایوٹک لیں تو اس کے ساتھ معدے کی دوائی ضرور لیں, اور آلودہ خوراک کھانے سے بچیں. کہ جو باہر کی خوراک ہوتی ہے کوشش کریں لینا ہے آپ نے جنک فوڈ کسی صاف جگہ سے لیں, اوائڈ کریں ایسی کنٹامینیٹڈ فوڈ کو جو غلط جگہ پر بک رہی ہے, صفائی کے ساتھ نہیں تیار ہو رہی. سیکنڈ جو بیماری ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے کانسٹیپیشن. کانسٹیپیشن ڈائریا کا ریورس یا الٹ پروسیس ہے. کانسٹیپیشن میں بجائے واٹری لوز موومنٹس کے آپ کی فیسز سٹرونگ ہو جاتی ہیں, آپ کی فیسز ہارڈ ہو جاتی ہیں. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ اپنا پخانہ نارمل ریگولر انٹرولز پہ پاس نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ کو پوٹی نہیں آ رہی 2-3 دن. اس کی جو علامات ہیں اس میں آپ کے پیٹ میں ڈیفیکلٹ باول موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا پریشر ہی مینٹین نہیں ہو رہا آپ کا سٹول پاس کرنے کے لیے, ہارڈ سٹول آ رہا ہے, ڈرائی سٹول ہے, بالکل خشک, پانی کی کمی ہے, ایبڈومینل ڈسکمفرٹ ہے, آپ کو ہر وقت پیٹ میں سے گیس ٹائپ آ رہی ہے اور بلوٹنگ ہو رہی ہے. اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہے لیک آف فائبری ڈائٹ. ایسی ڈائٹ آپ کھا رہے ہیں جس میں ریشہ دار غذائیں نہیں ہیں, فائبرز کی کمی ہے. پانی کم پینا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. جو لوگ بہت کم پانی پیتے ہیں ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی کم ہے, آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں, آپ کھانا کھانے کے بعد فوراً لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھے ہی رہتے ہیں. آپ کا ایسا کام ہے پڑھنے کا یا آفس کا یا گھر کا کہ جس میں کھانا کھانے کے بعد بیٹھنے یا لیٹنے کی ایکٹیویٹی ہے. کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو کانسٹیپیشن کروا دیتی ہیں جن میں آئرن سپلیمنٹس بہت امپورٹنٹ ہے, پین کلرز بھی ایسے موجود ہیں. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بھی یہ ہو جاتا ہے. اب اس کے ٹریٹمنٹ اور پریونشن کے طور پر سب سے پہلی چیز کہ ہائی فائبر فوڈ لیں, پھلوں کا استعمال کریں, سبزیوں کا استعمال کریں, گرینز کا استعمال کریں, پانی سب سے زیادہ پئیں, کم سے کم ایک دن میں 15 سے 20 گلاس پانی ضرور پئیں.
रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो मेडिसिन आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे वो इस्तेमाल करें, वॉक को अपनी रूटीन में लाएं। तो ये वो कुछ प्रिवेंशंस हैं जो आप कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो बीमारी डिस्कस की गई है बुक में आपके, वो है अल्सर। अल्सर नॉर्मली पेप्टिक अल्सर भी हम इसको कहते हैं। ये तेजाबियत की अलामत है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में तेजाबियत हो गई है। अब ये जो अल्सर है ये कैसे डेवलप होता है? ये आपके स्टमक वॉल्स में गैस्ट्रिक अल्सर के तौर पर डेवलप होता है। आपकी ड्यूडेनम में, आपके ओइसोफेगस में तेजाबियत ज्यादा हो गई है, आपने मिर्चों वाला खाना ज्यादा खाया है, आपने ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स खाए हैं, आपने ऐसा खाना खाया है जो कम कुक हुआ था, इससे अल्सर हो जाता है। इसकी अलामात में एक तो यह है कि आपके पेट में, आपके मैदे में, आपकी सांस की नाली में जलन हो रही होती है, खाने की नाली में, और सेलिवा आपको बहुत बार आ रहा होता है, बार बार आपको सेलिवा प्रोड्यूस हो रहा होता है, थूक प्रोड्यूस हो रहा होता है, भूख आपको नहीं लग रही होती, वेट आपका लॉस होना शुरू हो जाता है, और वॉमिट जब भी आपको आती है तो उसमें नॉर्मली ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर आपको सवेयर अल्सर है तो आपकी वॉमिट में भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा और आपके स्टूल्स में भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहले तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है वो आपको अल्सर करवा देता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनके इस्तेमाल की वजह से आपको अल्सर हो सकता है। अल्कोहल की कंजप्शन से, ज्यादा सिगरेट पीने से, ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको अल्सर हो जाता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। एंटासिड्स इस्तेमाल की जाती हैं और प्रोटॉन पंप्स इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें आपको पेन किलर्स का इस्तेमाल कम से कम करना है, बैलेंस डाइट खानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पाइसी फूड्स को छोड़ना है, जंक फूड्स को छोड़ना है। कि बाहर बाजार में मिलने वाली जितनी स्पाइसी फूड्स हैं ये आपका काम खराब करती हैं। अपने घर भी अगर आप खा रहे हैं तो अपने घर के जो मसाला जाते हैं जिनमें लाल मिर्च है, गरम मसाला है, इसको किसी ऐसी दुकान से लें जहां पर प्योर मिलता हो, इसमें कोई इन्फेक्शन वाली चीजें शामिल ना हो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। डाइजेशन के अमल को हमने डिटेल से डिस्कस किया। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।